Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear student, today I will teach you very important numerical which is related to standard 12 physics subject, chapter number 4, moving charge and magnetism. So in this video I will teach you many questions which is related to magnetic field. Okay, so now we want to start the question number 1 of exercise 4. So let's start. Now let's start question number 1. So question number 1 of exercise 4. So first we will read the questions, then after we will find the solution of these questions. So question number 1, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 cm, carries a current of 0.4 amperes. What is the magnitude of the magnetic field V at the center of the coil? So in these questions, what value we want to find? Can you say? We want to find the magnetic field at the center of coil. So we want to find the magnetic field V at the center of coil. So first we should know what is formula of magnetic field at the center of coil. Anyone can say? Magnetic field formula, magnetic field at the center of the coil is, okay, क्या होता है? Anyone can say? B equal to क्या होगा? Magnetic field at the center of the coils. So we know that, यहाँ पे लिख दो, we know that V equal to mu non Ni by 2a. Okay. So in this way we will use the formula of magnetic field V at the center of coil, mu naught Ni by 2a. So in these questions, what value is given that? Read first one time more. Number of turn given that, means number of turn is given that, write down, given that what value is given? N equal to 100, and then radius is given that, means A is given that. What is value of A? 8 centimeter. And if we will write in meter, so we can write 8 into 10 raised minus 2 meter. And I is also given that, this I is 0.4 ampere. But what is value of mu naught? So we know that mu naught equal to 4 pi into 10 to the raised minus 7. This is value of mu naught. So all these values we will substitute on this formula. Then after we can get the value of magnetic field at the center of the coil. So V equal to, what is value of mu naught? क्या लिखें? 4 pi into, very good, 4 pi into 10 to raise minus 7. Place of N we will put 100, and value of I is 0.4 ampere upon 2a, 2 into, and what is radius? This is given that 8 into 10 raised minus 2, so 8 into 10 raised minus 2. Now 2 to ja 4, 2 4 ja 8, and this value we can write 100 multiplied by 0.4, so we can write 40 into 10 to raise minus 7 upon क्या लिखेंगे? 4 into 10 to raise minus 2. Okay, so 4 1 ja 4, 4 10 ja 40, so we can write
10 into 10 to the raise minus 7 into 10 to the raise 2. Okay, and pi also here. We will put the value of pi. So pi into this value we can get. तो v equal to क्या लिख सकते हैं? What is value of pi? 3.14 and 10 cube. तो we can write 10 to the raise minus 4. And what is unit of magnetic field? Tesla. So this is your desired answer. Magnetic field at the center of the coil is 3.14. Now question number 2 of exercise 4. First read the question. What given that? So question number 2 have given that a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at the point 20 centimeter from the wire? So here we want to find the magnitude of the magnetic field of the wire. Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी. फील्ड मतलब कौन सी? यहाँ पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो फर्स्ट राइट डाउन फार्मूला. यूजिंग दिस फार्मूला V इक्वल टू म्यू I by 2 pi A. This is formula of long straight wire, magnetic field of the long straight wire. Okay, and question number 1 you have studied or you have solved and you have used the formula of magnitude of the center of the coil. Okay, so here first write down what values given that. So in question number 2 have given that. So given that क्या दिया है? What values given that? Current given. So current equal to means I equal to 35 ampere. And distance means A is given that. What is value of A? 20 centimeter from the wire. So A equal to 20 centimeter. So we will convert in standard form in meter, SI unit. So we can write 20 into 10 to the raise minus 2 meter. Okay, and we know that value of mu naught. बोलिए. We know that क्या जानते हैं आप? म्यू नॉन की वैल्यूज क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू रेस माइनस 7. ओके, क्लियर ना? अब हमें करना क्या है? वी वांट टू फाइंड द बी. हमें बी फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं. एनीवन हैव एनी डाउट? नो? गुड. इफ यू नो फार्मूला of magnetic field of the wire, so easily you can find the answer. So in these questions we will substitute the value of mu naught, okay, I and A. So place of mu naught we will substitute 4 pi into 10 to the raise minus 7, and place of I 31 ampere given that 31 not 35 ampere. And denominator have a what given that 2 pi A. So what is value of pi? 3.14, and value of A equal to 20 into 10 to the raise 20 into 10 to the raise minus 2. Okay, so here we will not put the value of pi. We will write 2 pi. Direct we will write the pi because here pi numerator have a also pi, तो pi will cancel. So 2 pi into 10 to the 20 into 10 to the minus 2. Pi cancel. 2 to the 4 and 2 10 the 20. So 35 into 10 to the minus 7 upon 10 to the minus 1. If you take in numerators 10 to the minus 1, so we can write 35 into 10 to the minus 7 into 10 to the 1. तो क्या हो जाएगा ये?
35 into 10 to raise minus 6. Okay, but if you write in any values in 10 to raise power, the integer should be 1. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू रेज माइनस 6 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा ये 3.5 इंटू, ये 3.5 हो गया, 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 10 टू रेज माइनस 7. तो हम b की वैल्यू लिख सकते हैं b इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू रेज माइनस 7 टेस्ला. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what given that in question number 3, read properly. Okay, one time, two time, read till you did not understand of these values. Okay, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in the north to the south direction. कहने का मतलब क्या है, given that क्या है, what value is given that, तो given that means I is given that. What is value of I? Here given that 50 ampere, right here 50 ampere, and give the magnitude of the direction of the B at the point 2.5 meter east of the wire. कहने का मतलब we want to find the value of B, और यहाँ पे क्या दिया है, value of A given that. A की वैल्यू कितनी दी है 2.5 मीटर. We want to find the value of B. Okay, so anyone can say formula of the magnetic field on long straight wire, using this formula, using formula कौन सा, B equal to mu non I by 2 pi A. अब यहाँ पे क्या है, B mu non की वैल्यू क्या है, म्यू नॉन इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज माइनस 7. ये वैल्यूज है, ये हमें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट, आपको मालूम होगा तभी आप इस वैल्यू लिख पाएंगे. वी नो दैट हमें ये पता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसके बेसिस पे हमें फाइंड करना है वी मैग्नेटिक फील्ड वी वांट टू फाइंड. एंड उससे पहले और दिया गया है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो हम डायरेक्शन बताएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे. या फिर जैसा कहो ये कि यहाँ पे वायर है, देखो ध्यान से, वायर इज डाउनवर्ड, यहाँ पे मेंशन किया गया है कैरीज द करंट जो फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ. तो नॉर्थ ऊपर है, करंट फ्लो हो रही है कितना एम्पियर 50 एम्पियर, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. फिर यहाँ पे कहा गया है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी एट द पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर. वायर ये, वायर के ईस्ट में क्या है, यहाँ पे ईस्ट है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर. तो आप देख करके इस फिगर को देख के बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किधर लगेगा. इतने डिस्टेंस पे है तो मैग्नीट्यूड कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड लगेगा, हाँ अपवर्ड लगेगा. ठीक है, तो ये क्या लगेगा, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होगा, बी की जो वैल्यूज होगी, ये डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपवर्ड, वर्टिकली, वेरी गुड, वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, कहने का मतलब जो ये वैल्यूज होगी, जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, ये वायर है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी. लेकिन लगेगा कितना, तो इस वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे. V इक्वल टू म्यू नॉन आई, फिर से हम लिख लेते हैं म्यू नॉन आई बाई 2 पाई A. तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला लगा है, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इक्वल टू कितना लिखे 4 पाई, वेरी गुड, 10 टू रेज माइनस 7. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I 50 एम्पियर, 50 एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है एम्पियर. एंड 2 पाई इंटू A कितना है 2.5 मीटर. तो हमें इसको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो गया 2. इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू रेज माइनस 7 अपॉन
2.5 तो कितना होगा 2.5 14 जा 100 तो हम क्या लिखेंगे 40 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर किस डायरेक्शन में है वर्टिकली अप। क्या लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अप। हो गया दोनों क्वेश्चन एक में ही हो गया कि 40 इंटू 10⁻⁷ इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। दिस इज वैल्यू ऑफ पी। So in this way we can find the answer. Okay, now question number 4. This question is also same way. We have completed the question number 1, 2, 3, 4. Here also given that find the magnetic field on the wire. So first read the question. Question number 4. A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in the east to west direction. तो यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं। एक कोई वायर है और वो ईस्ट टू वेस्ट, सपोज दैट ईस्ट यहाँ पे है वेस्ट ये है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रही। ओके एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। इस लाइन के नीचे कौन कहाँ होगा 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब आप देख सकते हो ये ईस्ट है ये वेस्ट है और ये डाउनवर्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं ऊपर नॉर्थ होगा नीचे क्या होगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कुछ नॉर्थ होगा ये साउथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये पॉइंट यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा। हाँ बोलिए टुवर्ड साउथ डायरेक्शन ना डाउनवर्ड। तो पहला आंसर मिल गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कहें तो कितना होगा टुवर्ड द साउथ के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हम लिख देंगे। तो जो वैल्यूज दी गई उसको हम लिखते हैं। फर्स्ट गिवन दैट क्या है बोल दीजिए गिवन दैट करंट गिवन वेरी गुड 90 ए और क्या दिया ए गिवन दैट कितना 1.5 मीटर और म्यू की वैल्यूज क्या होती है ओके 10⁻⁷ गुड। अभी तो याद हो गया। फाइंड आउट क्या करना है वी फाइंड आउट करना है। वी क्या है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है किसी लॉन्ग वायर पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है व्हाट इज फार्मूला ऑफ वी। हाँ बोलो वी इक्वल टू क्या होगा अभी पढ़ा था फिर याद तो है। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो क्या है म्यू की वैल्यू यही है सिंपल। अब तो इसको कर ही लोगे आप 10⁻⁷ I is given that 90 and then 2 pi and a की वैल्यूज कितनी है 1.5। अब आप पाई कैंसिल कर दीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 90 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 3 1.5 इंटू 2 3 हो गया 3 3 जा 9 30। आगे क्या लिखें 4 3 जा 12 120 इंटू 10⁻⁷ implies that तो v क्या होगा आप ही बताएंगे। अगर हमें लिखना है 10 के पावर में कोई वैल्यूज है तो 1 इंटीजर होना चाहिए जबकि यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं तो क्या करें वेरी गुड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 120 इंटू 10⁻⁷ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ये लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप डायरेक्ट लिखेंगे तभी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करिए तो दिस वैल्यू विल बी 1.2 एंड 10⁻⁷ एंड ये 2 कितना हो जाएगा -5 और इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला। तो v की वैल्यूज आशीष देखो क्या वैल्यूज है v इक्वल टू 1.2 10⁻⁵ क्या है टेस्ला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं v इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला और इसका फील्ड किस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स क्या लिखेंगे टुवर्ड्स साउथ। हो गया आंसर। तो यही तुम्हारा डिजायर्ड आंसर है। ओके
दिख रहा है बराबर? ओके गुड। तो हमें क्या लिखना है, दो क्वेश्चन इसमें पूछेंगे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना आया 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला, एंड देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। क्यों होगा? क्योंकि दिस वायर इज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बिलो द लाइन, तो दिस विल बी डाउनवर्ड, मींस दिस डायरेक्शन विल बी साउथ डायरेक्शन। कि अप ऑफ द वायर विल बी नॉर्थ, so downward will be south, so we can write toward the south. This is the correct answer. Okay, anyone have any doubt? No? Okay, thank you.